Hare Nama, Hare Nama Eva Kevalam, Kalo Nasteva, Nasteva, Nasteva Gatiranyata. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayet Nashtaprayesha Bhadreshu Nityam Bhagavat Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki. हिंदी और इंग्लिश? हिंदी प्रभु जी। ओके, मैं अंग्रेजी में पढ़ लूंगा। गीत भागवतम, रीडिंग फ्रॉम भागवतम, थर्ड चैप्टर, थर्ड कैंटो, थर्ड चैप्टर, द लॉर्ड्स पास टाइम्स आउट ऑफ वृंदावन, टेक्स्ट नंबर 1 and 2. उद्धव उवाच ततः स आगत्य पुरं स्वपित्रोस् चिकीर्षया शं बलदेव संयुतः निपात्य तुंगाद् रिपुयूथनाथं हतं यकर्षत् यशुम् ओजस्वर्यो. Translation purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Shri Uddhava said, thereafter Lord Krishna went to Mathura city with Shri Baladev, and to please their parents, they dragged Kamsa, the leader of public enemies, down from his throne and killed him, pulling him along the ground with strength. Purport. King Kamsa's death is only briefly described here because such pastimes are vividly and elaborately described in the 10th canto. The Lord proved to be worthy son of his parents even at the age of 16 years. Both brothers, Lord Krishna and Baladev, went to Mathura from Vrindavan and killed their maternal uncle who had given so much trouble to their parents. Vasudeva and Devaki. Kamsa was a great giant, and Vasudeva and Devaki never thought that Krishna and Balaram would be able to kill such great and strong enemy. When the two brothers attacked Kamsa on the throne, their parents feared that now Kamsa would finally get the opportunity to kill their sons, whom they had hidden for so long in the house of Nanda Maharaj. The parents of the Lord, due to parental affection, felt extreme danger and they almost fainted. Just to convince them that they had actually killed Kamsa, Krishna and Baladev pulled Kamsa's dead body along the ground to encourage them. Text number 2. Sandeepanehe sakritproktam brahmaditya sa vistaram tasmai pradad varam putram mrutam pancha janodarat. The Lord learned all the Vedas with their different branches simply by hearing them once from his teacher Sandeepani Muni, whom he rewarded by bringing back his dead son from the region of Yamaloka. Purport. No one but the Supreme Lord can become well versed in all the branches of Vedic wisdom simply by hearing once from his teacher. Nor can anyone bring a dead body back to life after the soul has already gone to the region of Yamaraj. But Lord Krishna ventured to the planet of Yamaloka and found the dead son of his teacher and brought him back to his father as a reward for the instructions received. The Lord is constitutionally well versed in all Vedas, and yet to teach by example that everyone must go to learn the Vedas from an authorized teacher and must satisfy the teacher by service and reward. He himself adopted this system. The Lord offered his services to his teacher Sandipani Muni, and the Muni, knowing the power of the Lord, asked something which was impossible to be done by anyone else. The teacher asked that his beloved son who had died be brought back to him
and the Lord fulfilled the request. The Lord is not therefore an ingrate to anyone who renders him some sort of service. The devotees of the Lord, who always engage in his loving service, are never to be disappointed in the progressive march of devotion service. ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कितना, 1 घंटा, कितना टाइम तक? प्रभु जी 45 मिनट्स प्रभु जी। ओके। भगवान वृंदावन लीला समाप्त करने के बाद एक्चुअली सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि कृष्ण और बलराम, बेसिकली कृष्ण भगवान वृंदावन लीला में, ब्रज लीला में, इतना प्रेममयी लीला में इतना मग्न हो गए थे कि उन्होंने अपने अवतार कार्य, मिशन ऑफ हिज अवतार, उन्होंने भूल गए बोलते हैं। क्योंकि गोपियों का प्रेम, गोपों का प्रेम उनको ऐसा जीत लिया था कि छोड़ना नहीं चाहते थे। इसलिए इतना मग्न हो गए और रासलीला का नृत्य कर रहे थे गोपियों के साथ, अपने गोपों के साथ बाल्य लीला, गोचारण लीला कर रहे थे और पिकनिक बना रहे थे। मैं हमेशा ये पास टाइम में बताता हूँ कि एक बार किसी ने प्रभुपाद जी से पूछे थे, प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त, प्योर डिवोटीज को एंजाइटी होता है क्या, टेंशन रहता है क्या? प्रभुपाद जी ने बोला इन जनरल शुद्ध भक्त एंजाइटी से मुक्त है, टेंशन नहीं रहता है उनको। लेकिन आज मुझे एक एंजाइटी है, बहुत बड़ा एंजाइटी है। फिर डिसाइपल ने पूछा था क्या एंजाइटी है प्रभुपाद जी आपको? व्हाट इज देयर इन द लंच बॉक्स ऑफ कृष्णा टुडे? लंच, कृष्ण का लंच बॉक्स में क्या है? कचौरी है, संदेश है। फिर प्रभुपाद जी ने भविष्यवाणी किए थे कि द डेस्टिनी ऑफ ऑल हरे कृष्णा डिवोटीज इज टू जॉइन पिकनिक ऑफ कृष्णा एंड बलराम। सबका भाग्य, हरे कृष्णा भक्तों का भाग्य यही है, भविष्यवाणी बताया प्रभुपाद जी ने किए थे कि कृष्ण और बलराम के पिकनिक में पिकनिक एंजॉय कर सके। फिर इसी बीच में सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि कृष्ण भगवान को याद दिलाने के लिए नारद मुनि आए थे कि हे कृष्ण, अच्छा है, बहुत अच्छा है, आप अपना वृंदावन लीला इतना एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आपका अवतार कार्य रह गया। आपको आपका पिताजी और माताजी को जेल से रिक्त करना है, मुक्त रिहा करना है। कंस और ये कंस आदि बाकी असुरों को भी मारना है, आपको वध करना है। इसलिए आप दया करके आप वृंदावन छोड़िए और आप अपना अवतार कार्य कीजिए करके नारद मुनि याद दिलाते हैं। फिर जब भी हो कृष्ण भगवान ने सोचा ठीक है। फिर बाद में नारद मुनि प्रेडिक्शन किया था कि अक्रूर आएंगे और केशी डिमन आएगा, आप उनको वध करेंगे और बाकी अरिष्टासुर आएगा, उसको वध करेंगे। ऐसे ये सब उन्होंने भविष्यवाणी किए थे। फिर बाद में अक्रूर आएंगे और आपको लेके जाएंगे, कंस को वध करेंगे। ऐसा मैं ये सब लीला देखूंगा, ऐसा करके उन्होंने भगवान कृष्ण से चर्चा की और उन्होंने छोड़ दिया। फिर भगवान अक्रूर के रथ के ऊपर बैठ के कृष्ण और बलराम वृंदावन छोड़ के
मथुरा के तरफ प्रस्थान किए थे। फिर अक्रूर, गोपियां बोलती हैं किसने उसका नाम दिया अक्रूर। ये इतना क्रूर है कि हमारा लाइफ एंड सोल, हमारा जीवात्मा हमको हमसे लेके जा रहे हैं कृष्ण भगवान को। इसलिए बाद में जाके शमंतकमणि पास टाइम में उसको अपराध लग जाता है, इसलिए उन्होंने चोरी किया शमंतकमणि का, क्योंकि गोपियों का उसको आह लग गया, बोलते हैं अपराध हो गया। तो जो भी है उस अलग बात है। फिर कृष्ण बलराम जब मथुरा पहुंचे थे, अक्रूर जी ने रिक्वेस्ट किया था, विनती किए थे कि हमारे घर आ जाइए, और कृष्ण उसको समझाए थे कि अभी मत आऊंगा, कंस को वध करने के बाद, बाकी काम निपटाने के बाद तभी मैं आऊंगा आपके घर पे। फिर अक्रूर जी थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ था, लेकिन बाद में राधा गोविंद महाराज बोलते हैं, बाद में आप नहीं देखते हैं बहुत साल तक अक्रूर का लीला, क्योंकि हर दिन अक्रूर जी अपना घर को डेकोरेट करते थे, कृष्ण बलराम आएंगे करके। ऐसा बहुत दिन उन्होंने इंतजार किए थे, हर दिन इंतजार करते थे कृष्ण आएंगे करके। और बाद में कृष्ण और बलराम मथुरा में प्रवेश किए थे। ये बहुत ही सुंदर लीला है, विस्तार से मैंने श्री राधा गोविंद महाराज ने एक बार कृष्ण बलराम का मथुरा लीला के ऊपर सप्ताह किए थे, बहुत विस्तार से, इतना विस्तार से कहने का विषय है कृष्ण बलराम मथुरा का लीला, मथुरा का। अभी संक्षिप्त में बताऊंगा। जैसा ही जब कृष्ण बलराम एंटर किए थे मथुरा में, सारे मथुरावासी कृष्ण के प्रति आकर्षित हो गए थे। फिर खास करके मथुरा के स्त्रियां अपने टेरेसों के ऊपर जाके देख रहे थे, और कृष्ण को जैसा देखते ही उसको प्रेम हो गया था, और फूलों का वर्षा कर रही थी, और प्रशंसा कर रही थी कि पता नहीं गोपियां क्या तपस्या की थी अपने पूर्व जन्मों में, कि उन्होंने कृष्ण जैसा सुंदर पुरुष को हर दिन देखने का, उनका चुंबन करने का, अधरामृत का पान करने का उनको मौका मिला था, ऐसा करके। फिर बाकी मथुरावासी भी प्रशंसा कर रहे थे कि इतना ये सुंदर आनंद मूर्ति महापुरुष हमको दर्शन हुआ आज, हमारे आंखों का परफेक्शन है आज, ऐसा करके सब लोग प्रशंसा कर रहे थे। इसी बीच में एक धोबी मिला था, उन्होंने कंस का सेवक था, राक्षस था। चैतन्य महाप्रभु ये लीला के बारे में बताते हैं, चैतन्य भागवत में उल्लेख है इसका, कि ये जो धोबी है 10 करोड़ साल उन्होंने तपस्या की, 10 करोड़ जन्मों में उन्होंने तपस्या की थी कि कृष्ण से मुलाकात, वो तपस्या का फल था, कृष्ण से मुलाकात हुई थी। लेकिन उन्होंने ठीक से गुरुजन से शिक्षा नहीं ली, इसलिए उनको सेवा भाव नहीं हुआ, उदय नहीं हुआ उनका भाव उनके हृदय में। राक्षस था, इतना तपस्या करने के बाद भी उसको कृष्ण भगवान का सेवा करनी चाहिए करके उसको भावना नहीं उदय हुआ था। इसलिए जब भगवान कृष्ण संपूर्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनका कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये धोबी के ऊपर कृपा करने के लिए उन्होंने मांगे थे अपने आप को। 2 अवतार मांगते हैं, जैसे कि भगवान रामचंद्र, हम इसलिए रामार्पण वस्तु हम नहीं बोलते, कृष्णार्पण वस्तु हम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण मांगे थे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमो भक्त प्रयच्छति तदहम भक्ति हृदय अस्नामि प्रयतात्मनः। कृष्ण भगवान को जरूरत नहीं है, लेकिन हमसे पत्रम पुष्पम मांग रहे थे, और एक अवतार मांगे थे, वो है वामन अवतार। बाकी अवतारों में भगवान नहीं मांगते हैं। इसलिए
अपने आप से मांगे थे कृष्ण भगवान, लेकिन वो दुष्ट था, कंस का सेवक था, इसलिए उन्होंने डांटे थे कृष्ण और बलराम को कि आप लोग पहाड़ों में रहने वाले हैं, शहर में आए हो, आप तमीज नहीं है आपको, ये राजा का वस्त्र है, राजा का वस्त्र को पहनने का इच्छा करना जघन्य अपराध है, उनको पता चला तो आपको वध कर देगा, इसलिए अपने हद में रहो, ऐसा करके उन्होंने डांटे थे कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान को क्रोध आया, फिर एक उंगली से उनका सिर काट दिए थे। प्रभुपाद जी बोलते हैं यही भगवान का लक्षण है ना, भगवान को कोई आयुध का जरूरत नहीं है, ये सब असुरों को मारने के लिए, वध करने के लिए अपने संकल्प मात्र से वध कर देंगे। फिर भी कृष्ण भगवान आए थे लीला करने के लिए, इसलिए उन्होंने उसको वध कर दिया। फिर बाकी उनके अनुचर भयभीत हो गए और भाग गए उधर से। फिर बाद में कृष्ण अपने पसंदीदा वस्त्र पहने थे और बहुत सुंदर लग रहे थे, और कृष्ण और बलराम दोनों फिर अपने साथियों को भी पहनाए थे। फिर बाकी सब भाग गए, फिर दो बेबी एलिफेंट्स जैसा दिख रहे थे और मथुरा के वीडियो स्ट्रीट्स में वो जा रहे थे। फिर इसी बीच में एक टेलर मिला था, टेलर ने कुछ वस्त्र लेके उनको, भगवान को और कृष्ण बलराम को वस्त्र सिला के दिए थे और कृष्ण भगवान उसको वर दिए थे। मैंने जो लीला बोलने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट लीला है, आप श्रद्धा से सुनिएगा। उनका नाम था माल्याकार, माला बनाने वाला। आप वो माला बनाने वाले का शब्द मेन स्ट्रीट में नहीं था, थोड़ा अलग थोड़ा डिटूर करके अपना रास्ता बदल के कृष्ण को एक गली में घुसना पड़ा उसको मिलने के लिए। आचार्यगण कमेंट्री अपना टीका में लिखते हैं कि आप कृष्ण भगवान के पास मत जाओ, आप ऐसा सेवा करो, ऐसा काम करो, कृष्ण भगवान आपके पास आएंगे। हम भगवान के पास नहीं जा सकते हैं, कृष्ण कृपा दिखा के, कृपा करके, दया दिखा के हमारे पास आना चाहिए, हम वो आएंगे। वैसा जैसा कि भगवान रामचंद्र सर्वंग मुनि के पास गए थे, भगवान रामचंद्र अगस्त्य मुनि के पास गए थे, भगवान रामचंद्र सबरी के पास गए थे, भगवान सबके पास भगवान रामचंद्र गए थे, इसलिए नहीं कि सब। फिर दंडकारण्य ऋषियों के पास भगवान रामचंद्र गए थे उनको कृपा करने के लिए, उनके ऊपर कृपा दिखाने के लिए। इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लीला है। सुदामा, उनका नाम था सुदामा, ये सुदामा अलग है। सुदामा अपने हर दिन उनको सुनाई पड़ी कि कृष्ण और बलराम के बारे में वृंदावन में कैसा लीला कर रहे थे। फिर उनको समझ में आया कि वो भगवान है, क्योंकि मथुरा में रह रहे हैं, इसलिए उनको पता चला कि वो भगवान है। इसलिए उन्होंने कृष्ण और बलराम का एक पिक्चर रख के हर दिन माला पहनाते थे, तो वो पिक्चर पेंटिंग को, और पूजा करते थे भगवान। फिर आशा करते थे कि कब आएंगे कृष्ण बलराम, कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे। तो उत्कंठ से, बहुत ही उत्कंठ से वो भगवान के लिए इंतजार कर रहे थे वो। फिर भगवान सबके हृदय में विराजमान है, इसलिए उन्होंने उनका इच्छा जानते उनको, इसलिए उनको वर प्रदान करने के लिए कृष्ण और बलराम अपने आप अपने सुंदर अपने पैरों चरण कमल से उन्होंने सुदामा के पास गए थे, उनके शाप के सामने खड़े हो गए थे। फिर सुदामा देख के आश्चर्यचकित हो गया, अरे क्या है इतना, अरे मेरा आराध्य दैव आ गए करके तुरंत उन्होंने
कृष्ण और बलराम को देख के दंडवत प्रणाम कर दिया। फिर उनका आंखों से अश्रु निकल रहे थे, आनंद बाष्प बोलते हैं, आनंद के अश्रु निकल रहे थे और उनका शरीर पुलकित हो गया। आज मेरा जन्म सिद्ध हो गया, मेरा दिन पवित्र हो गया, मेरा जन्म पवित्र हो गया, मेरा पूरा परिवार पवित्र हो गया कि मेरा उपदैव आराध्य दैव स्वयं चल के अपने पास आ गए हैं करके। फिर उन्होंने कुछ देर के बाद अपने आप को संभाला और कृष्ण और बलराम से पूछे हे भगवान कृष्ण, आपको क्या सेवा कर सकता हूँ मैं? फिर कृष्ण बलराम बोला, अरे आप क्या कर सकते, क्या हर दिन जो सेवा करते हो आज वही सेवा करो, वो माला अर्पण करो। फिर तुरंत उन्होंने कृष्ण और बलराम के लिए बहुत ही सुंदर माला अर्पण किए थे और अपने हाथों से कृष्ण और बलराम को पहनाए थे। आप याद रखना, हम 1996 से मैं डीटी वर्शिप करते आ रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, हर दिन मैं करता हूँ डीटी वर्शिप। उस समय मैं भक्तिवेदांत इंस्टीट्यूट में सेवा करता था। सिद्धार्थ महाराज हमको रिक्वेस्ट किए थे कि पुजारी का शॉर्टेज है, आप आओ और सेवा करो। लेकिन उस समय क्योंकि पूरा दिन सेवा रहता था, इसलिए जब करने का टाइम पे हमको श्रृंगार करने के लिए जाना पड़ता था, इसलिए मैंने छोड़ दिया था, बीच में कुछ दिन करके छोड़ दिया था, क्योंकि जब करने का तो तकलीफ हो रहा था। इसी बीच में जब सिद्धार्थ महाराज हमको रिक्वेस्ट किया तो मैं सोच रहा था, इसी बीच में मैं प्रभुपाद जी का एक कोट मैंने पढ़ा था। वैसे तो 2 कोट्स मैंने पढ़ा था। एक है, आप लोग याद रखना, प्रभुपाद जी ने लिखा था कि हर दिन कृष्ण को श्रृंगार करते रहो, कृष्ण को श्रृंगार, राधा कृष्ण को श्रृंगार करते रहो। एक दिन ऐसा आएगा कि कृष्ण मुस्कुराएंगे और उस दिन आपका लाइफ परफेक्ट हो जाएगा। ऐसा फिर मैंने इम्प्रेस हो गया, अरे मैं तो ट्राई करना चाहिए मुझे। ऐसा करके मैं सोच रहा था, मैं हर दिन ड्रेसिंग करूंगा, फिर एक दिन मुस्कुराएंगे भगवान। एक दिन एक प्रभुपाद जी डिसाइपल आए थे, वो अनफॉर्चुनेटली वो क्लास में नहीं बैठा था, लेकिन एक माता जी हमको बता रही थी, उन्होंने क्लास में बैठी थी, उन्हें बता रहे थे आज राधा रास बिहारी बहुत इतना मुस्कुरा रहे हैं, जो पुजारी उनका ड्रेसिंग किया उनका लाइफ परफेक्ट हो गया। ऐसा करके बताया बोलते क्लास में। मैंने सोचा प्रभुपाद जी का जब भी है। फिर दूसरी बात मैंने पढ़ा था, प्रभुपाद जी ने बोला था, लिखा था कि सबसे सर्वश्रेष्ठ उत्तम सेवा कृष्ण भगवान के लिए क्या है? हर दिन तुलसी और चंदन के साथ चरण कमलों में, कृष्ण के चरण कमल में तुलसी चंदन के साथ अर्पण करना, इट इज द ग्रेटेस्ट सर्विस, प्रभुपाद जी ने बोला है ना। तब से मैं हर दिन तुलसी और चंदन कृष्ण भगवान के चरण में अर्पण करता हूँ। प्रभुपाद जी ने बोला, जो ऐसा तुलसी और चंदन अर्पण करते हैं उसको कृष्ण प्रेम जरूर प्राप्त होगा करके प्रभुपाद जी ने। फिर मैंने सोचा, फिर आप लोग भी कर सकते हैं हर दिन भगवान की श्रृंगार। और जिन लोग के पास डीटी नहीं है, वो लोग तुलसी और चंदन लेके कृष्ण के पेंटिंग के ऊपर भी और पिक्चर के ऊपर भी आप चिपका सकते हैं। और प्रभुपाद जी ने बोला, तुलसी और चंदन के साथ चरण कमल में अर्पण करके, आई नंद तनुजा किंकरम पतितम मामिषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्तुतिधूलि सदृशं विचिंतया, ये प्रेयर करना चाहिए जो भी है। फिर अब मैं और एक बात बोलूंगा, आप लोग याद रखना, नोट करना। कृष्ण भगवान सुदामा से पूछा था कि हे सुदामा, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ आपका सेवा से, आप कोई भी वर मांगो मैं आपको प्रदान करूंगा। फिर उन्होंने 3 वर मांगे थे, 3 चीज मांगे थे। आप लोग श्रीभाष्यम अकलाचार्य एक आचार्य बोलते हैं
कि हर दिन ये प्रार्थना हमको करनी चाहिए भगवान को। वो क्या है? एक है ये उन्होंने तीन चीज मांगा था, तीन वर मांगे थे। एक है भगवान आपके चरण कमल के प्रति निश्चल भक्ति, एक है। दूसरी है कि आपके भक्तों के साथ मित्रता, और तीसरी है कि सारे जीवों के ऊपर दया, अनुकंपा। ये तीनों वर हम हर दिन भगवान से मांगने चाहिए हमको। एक है आप याद रखना, मैं पूछूंगा लास्ट में, क्लास के लास्ट में, कि एक है आपके चरण कमल के प्रति निश्चल भक्ति, दूसरी है आपके भक्तों के साथ मित्रता, और तीसरी है आपका सारे जीवों के ऊपर अनुकंपा, दया। फिर कृष्ण भगवान मुस्कुराए, बोलते तदास्तु। फिर हे सुदामा, मैं इतना, ये तीनों तो मैं दूंगा ही, लेकिन और दूंगा कि जब तक तुम जीवित रहोगे तब तक तुम्हारा इंद्रिय एकदम बलवान रहेंगे, और आप सारे भौतिक एंजॉयमेंट, मटेरियल एंजॉयमेंट आपको मिलेगा। आपका सब परिवार के साथ बहुत ही संपत्ति आपको मिलेगी, और अपने परिवार के साथ, अपने बंधु मित्रों के साथ बहुत जब तक आप जियोगे, अपने आपका इंद्रिय एकदम स्ट्रांग रहेंगे, और एंजॉय करो और मेरा भक्ति करो, और अंत में जब देहांत के बाद मेरा धाम में आओगे, ऐसा करके उन्होंने वर दिया था। फिर भगवान को जो सेवा करते हैं उसको कोई नुकसान नहीं होता है। फिर ऐसा बाद में बहुत सारे लीला किए थे, टाइम नहीं है। फिर बाद में कुब्जा को भी वर दिए थे। फिर कुब्जा से हम एक सीखना चाहिए कि कुब्जा सैरेंद्री थी, तीन जगह तो वक्र थी वो, इसलिए उनको बोला गया है कि त्रिवक्र, तीन जगह टेढ़ी थी वो। लेकिन जब कृष्ण भगवान उनको देखे थे, उनको उनके साथ परिहास कर रहे थे, लेकिन जो 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 वाक्य परिहास में भी कहते हैं भगवान, वो सच हो जाता है। फिर उन्होंने संबोधित किए थे कि हे सुंदरी, वो जो त्रिवक्र है, कुब्जा है, मौना है, वो सुंदरी कैसा हो सकती है? हम उसको हेट करते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान उनको सुंदरी, विष्णु चक्टा को लिखते हैं कि आगे जाके कुछ ही क्षणों में उसको त्रिलोक सुंदरी बनाने वाले थे, इसलिए पहले ही उनको भविष्यवाणी उनको संबोधित कर लिए, हे सुंदरी, ये क्या, कौन है आप, क्या, किधर जा रही हो, किधर जा रही हो आप, क्या? फिर उन्होंने बोला, मैं कंस के दासी हूँ, मैं चंदन बनाती हूँ, चंदन सुगंधित चंदन कृष्ण को अर्पण करती हूँ। फिर लेकिन मैंने सोच लिया कि ये जो चंदन असली में आप हकदार है ना, आपको देना चाहिए, इसलिए मैं आपको दूंगी चंदन, आपको। ये प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब कंस को पता चलेगा कि कुब्जा ने अपने लिए जो चंदन बनाई थी, वो चंदन कोई अपने शत्रु कृष्ण और बलराम को अर्पण कर दिया करके जानने के बाद, सिर्फ कुब्जा को ही नहीं, उनके सारे बंधु मित्र परिवार को वध कर देता था, वो पूरा सर्वनाश कर देता था पूरा फैमिली को, वो जानती थी। फिर भी उन्होंने धैर्य करके, भाई त्याग करके उन्होंने कृष्ण को अर्पण कर दिया। ये हमको सीखना चाहिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं चौथा स्कंद भागवतम में कि जो एक बार किसी ने प्रभुपाद जी से पूछे थे, प्रभुपाद, व्हाट इट मीन्स टू बी ऑन हाईएस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस? प्रभुपाद जी ने बोला, टू बिकम फियरलेस, भय से मुक्त हो जाना। फिर जो कृष्ण भक्त है, प्रभुपाद जी ने बोला, अनलेस समबडी इज जॉयफुल वी कैनॉट परफॉर्म डिवोशन सर्विस। जब तक हम आनंद में नहीं रहते हैं, हम कृष्ण भगवान का निश्चल भक्ति नहीं कर सकते हैं। फिर प्रभुपाद जी ने बोला, जब तक हम भय से मुक्त नहीं होते हैं,
हमको आनंद में नहीं रह सकते हैं। Unless we become free from fear, we cannot be joyful. Unless we are joyful, we cannot perform devotion service. ये 14 स्कंद 24 चैप्टर में प्रभुपाद जी लिखते हैं। हमको याद रखना चाहिए कि हम कृष्ण भगवान, हम बोलते हैं मैं सुहृद हूँ, मैं सबके मित्र हूँ, मैं सबके तीनों लोकों का पालक हूँ, और मैं सब यज्ञों का भोक्ता हूँ। ये बात, ये श्लोक याद करके हमको भय से मुक्त होना चाहिए। अरे मेरा फ्रेंड कृष्ण है, मैं क्यों भयभीत हूँ? ऐसा करके हमको धैर्य से रहना चाहिए। ये सब सीख मिलता है हमको। फिर उन्होंने बहुत ही सुंदर कृष्ण बलराम को अलंकृत किया है। फिर चंदन का लेप से, और कृष्ण बलराम और बहुत ही प्रसन्न हो गए थे। फिर उन्होंने अपने चरण कमल को उनके पैरों के ऊपर रख के, और अपने दोनों कमल हस्त से उनके कान पकड़े थे, और उनको ऊपर किए थे, उनके ऊपर भी हाथ रख के। फिर एक बार एकदम त्रिपुर सुंदरी बन गई, त्रिवक्रा थी, त्रिपुर सुंदरी, तीनों लोगों का बहुत ही सुंदर स्त्री बन गई। फिर जब कृष्ण भगवान उनको टच किए थे, उनको काम का प्रेरणा आ गई उनके हृदय में। फिर उनको उनके चादर खींचते हुए उनको मांग रही थी, हे सुंदरा, मुझे आपसे प्रेम हो गया, आप मेरा घर में आओ और मुझे संतुष्ट करो, सेटिस्फाई करो। फिर कृष्ण भगवान भी परिहास कर रहे थे। कृष्ण बलराम भी है, उनके बड़े भाई फ्री कर रहे थे। फिर उनको थोड़ा संकोच हुआ, लेकिन कृष्ण बोले अभी नहीं, बाद में आऊंगा, आपका सेटिस्फाई करूंगा। इसलिए इससे बोलते हैं कि त्रिवक्र का मतलब है भूमि देवी है, भूमि देवी एक्सपेंशन है बोलते हैं त्रिवक्र। फिर उनका ये भार हो गया ना राजाओं का सेना के वजह से, इसलिए त्रिवक्र बन गई थी भूदेवी। फिर ये लीला करके भगवान को आश्वासन दिए थे कि जैसा त्रिवक्र को सीधा कर दिया, वैसा ही भूदेवी का भार भी ठीक कर दूंगा, ऐसा करके। फिर बाद में आप लोग जानते हैं धनुष को तोड़े थे। फिर बाद में उधर जो फिर कुवल्य पीड़ा करके एक हाथी था, तो ये बहुत ही क्या बोलते हैं, बलवान हाथी है। हाथी इतना बलवान था, सब लोग। फिर ऐसा बलवान हाथी को कंस ने अपने कंट्रोल में लेके आया था। इसलिए ये हाथी कुवल्य पीड़ा हाथी उनका था, जरासंध का था। इसलिए उन्होंने इम्प्रेस हो गया था, इसलिए अपना दोनों बेटियों को कंस के साथ विवाह किया। फिर कंस को साथ, इसके वजह से ये सब सारे जो डीमंस है, पूतना, तृणाव्रत और बकासुर, अगासुर, रेणुकासुर, वत्सासुर, अरिष्टासुर, केशी, ये सब कंस के कंट्रोल में आ गए थे, क्योंकि कुवल्य पीड़ा को कुवल्य पीड़ा को कंट्रोल में लाया, इसका मतलब बहुत ही बड़ा बलवान था। ऐसा करके सारे जरासंध तो बंधु बन गया था। इसलिए ऐसा कंस सबको कंट्रोल करने लगा। देवता लोग भी डरते थे, कंस साधारण असुर नहीं था। देवता लोग भी डरते थे कंस के बारे में सुन के, कंस को स्मरण करते। इसलिए उन्होंने
उन्होंने कुवल्य पीड़ा को भी वध कर दिया था भगवान कृष्ण। फिर जब कंस को सुनाई पड़ा कि कृष्ण कुवल्य पीड़ा को, हाथी को मार दिया, वध कर दिया, फिर उसको और भय बढ़ गया, इतना भयभीत हो गया, अरे ये तो कुवल्य पीड़ा को मार दिया, इसका मतलब साधारण बालक नहीं है ये, ऐसा करके। फिर बाद में चाणूर और मुष्टिका, ये जो रेसलर्स है, ये दोनों कुश्ती लड़ने लगे। फिर बहुत ही सुंदर दृश्य था। सारे मथुरावासी इकट्ठा हुए थे रंगस्थल में, और फिर वो लोग सोच रहे थे कृष्ण और बलराम कमल जैसा कोमल है उनके अंग, ऐसे ये चाणूर और मुष्टिक पत्थर जैसा है, इतना कठोर है, ये कैसा इनके साथ कुश्ती करेंगे, ये तो अन्याय हो रहा है, ऐसा करके कंस को श्राप देने लगे सारे मथुरा के स्त्रियां। फिर कुछ लोग को रोने लगे, कुछ लोग, मथुरा देवकी और वसुदेव भी उसको भयभीत हो गए कि कंस इतना, चाणूर और मुष्टिका इतना बलवान थे, उसको कैसा वध करेगा, उसको कैसा, उसके साथ कैसे कुश्ती करेगा, ऐसा करके। फिर बाकी फिर कृष्ण और बलराम कुछ देर के लिए उनके साथ ऐसा ही लड़ रहे थे, कुश्ती कर रहे थे। फिर बाद में ये जब उनके स्त्रियों का बात सुन के उन्होंने बोला ठीक है, इसको ठीक कर देंगे करके, और चाणूर और मुष्टिका और बाकी रेसलर्स को उनको मार दिए थे। फिर बाद में कंस को इतना भयभीत हो गया कि पूरे चिल्लाने लगा, वसुदेव और देवकी को चीटर्स है दोनों, हमसे झूठ बोल है, यही उनके 8वां पुत्र है, तुरंत वसुदेव और देवकी को वध कर दो, मेरा पिताजी को जेल में जाके वध कर दो, ये सब चीटर्स है, सारे यदुवंशियों को वध कर दो, ऐसा करके चिल्ला रहा था। फिर कृष्ण ऊपर उतरे थे, चढ़ गए थे, और कंस को नीचे खींच के लेके आए और उनके छाती के ऊपर बैठ के अपने मुष्टि बहुत जोर से मारे थे। फिर उसी टाइम कंस प्राण त्याग कर दिया। क्या उसी टाइम कंस प्राण त्याग कर दिया। लेकिन प्रभुपाद जी परपोर्ट में लिखते हैं कि एक्चुअली कंस मर गए थे, लेकिन वो वसुदेव और देवकी सोचेंगे कि पता नहीं कंस अभी भी जिंदा है क्या, फिर उसको आश्वासन देने के लिए कंस को बाल पकड़ के खींच, जैसा कि एक शेर अपना कोई हरिण को किसी को मार के खींच के लेके जाता है अपने, वैसा ही उन्होंने कंस को खींच के लेके आए ताकि उसको आश्वासन देने के लिए कि असली में मर चुका है कंस। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कंस अनफेवरेबल डिवोशन सर्विस किए थे, लेकिन फिर भी हमेशा 24 घंटे कृष्ण का स्मरण करते थे। कंस हमेशा उनके रूप को स्मरण करते थे, हर जगह कृष्ण को देखते थे, बैठते समय कृष्ण को देखते थे, आसन में कृष्ण को देखते थे, खाने में कृष्ण को देखते थे, सपने में कृष्ण आते थे। कृष्ण 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 कृष्णमय हो गया, उनका तन्मय हो गया, लेकिन अनफेवरेबली। फिर भी प्रभुपाद जी लिखते हैं उसको सारूप्य मुक्ति मिला कंस को। फिर बहुत ही सुंदर लीला है। फिर बाद में एक आचार्य बोलते हैं, प्रभुपाद जी बोले हैं कि कंस भाई को रिप्रेजेंट करता है, और एक शिव वैष्णवाचार्य ने बोला काम को रिप्रेजेंट करता है कंस, काम के जैसे कि काम कंस। फिर जो भी दोनों करेक्ट है, मैं बाद में कभी बताऊंगा विस्तार से, लेकिन जो कंस वध का लीला हम सुनते हैं, जो श्रवण करते हैं, उसको काम और भय दोनों से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए
फिर बाद में कृष्ण और बलराम को संक्षिप्त में मैं बताऊंगा कि बाद में कृष्ण और बलराम प्रणाम किए थे। फिर वसुदेव और देवकी संकोच कर रहे थे क्योंकि उनको सोच रहे थे कि भगवान है हमारे, फिर भी उनको योग माया के द्वारा उनको उनको प्रभावित कर दिया योग माया से, उसका ढक दिया उसका ज्ञान को। इसलिए तभी उन्होंने दोनों पुत्रों को आलिंगन किए, फिर बाद में अपने साथ लेके गए। फिर बाद में कृष्ण और बलराम को संदीपनी मुनि के पास एजुकेशन के लिए भेजा था, क्योंकि अभी तक कृष्ण और बलराम गोचारण कर रहे थे, गाय को पालन कर रहे थे, कोई विद्याभ्यास नहीं हुआ, कोई पढ़ाई विढ़ाई नहीं किया। सोचा था कुछ वेदाभ्यास कराएंगे, विद्याभ्यास, इसलिए संदीपनी मुनि के पास भेजे थे दोनों लड़के को। वो अवंती मीन्स अभी उज्जैन बोलते हैं, मध्य प्रदेश में। मैं एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताऊंगा कि संदीपनी मुनि, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने कमेंट्री में लिखते हैं कि भगवद गीता कमेंट्री 7वां श्लोक का, दूसरी अध्याय 7वां श्लोक का कमेंट्री में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि संदीपनी मुनि के पास क्यों गए थे, क्योंकि संदीपनी मुनि शाइवाइट था, वो विष्णु भक्त नहीं था, वैष्णव नहीं थे, शाइवाइट थे। फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसलिए लिखते हैं कि ये जो अपने शिष्य बनने का ये जो लीला को अनुभव करने के लिए, एंजॉय करने के लिए वो संदीपनी मुनि को चुना था, क्योंकि वो वैष्णव गुरु के पास जाएंगे तो वो पहचान लेगा कि ये कृष्ण और बलराम भगवान है। फिर ठीक से वो बिहेव नहीं, ट्रीटमेंट नहीं देगा, अरे शिष्य जैसा नहीं देखेगा, वो भगवान जैसा दिखेगा, इसलिए वो मजा नहीं आएगा करके संदीपनी मुनि के पास गए थे। क्योंकि वो शाइवाइट था, इसलिए वो रिकॉग्नाइज कर नहीं पाएगा कि कृष्ण और बलराम भगवान विष्णु, श्री महाविष्णु आदि नारायण है, ऐसा करके, इसलिए वो एंजॉय कर रहे थे। प्रभुपाद जी लिखते हैं भक्ति रसम सिंधु में और कृष्णा बुक में 64 आर्ट्स, 64 कला है, 64 दिनों में उन्होंने सीख लिए थे। एक बार सुनने से कृष्ण याद कर लेते थे। फिर कृष्ण प्रभुपाद जी लिखते हैं भक्ति रसम सिंधु में, जैसा कि सूर्य समुद्र से पानी को इवापोरेट करके मेघों में रखते हैं और मेघों से वापस पानी समुद्र में डाल देते हैं, नदियों में डाल देते हैं, फिर नदी वापस समुद्र में चला जाता है। फिर वैसा ही ये जो ज्ञान है कृष्ण भगवान से है, आता है। फिर बाकी कुछ गुरुओं के द्वारा संदीपनी मुनि के पास आया है और संदीपनी मुनि कृष्ण भगवान को वापस दे दिया, फिर उनका सेवा है। फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि एक असली शिष्य जैसा बिहेव करेगा कृष्ण भगवान, कृष्ण और बलराम, और उनको मीनियल सेवा करते थे, मीनियल सेवा वो गुरु एक शिष्य का कर्तव्य है। जो शिष्य को गुरु का वापू का सेवा मिलता है बहुत ही भाग्यवान है, सबको नहीं मिलता है वापू सेवा और वाणी सेवा। हमको गुरु का वापू सेवा करने का भी प्रयत्न करना चाहिए, उनका वो कर्तव्य, क्योंकि नम्र बनेंगे, क्योंकि उनका पैर दबाना, उनका चरण दबाना और उनका कपड़े वॉश करना, ये सब करना चाहिए। उनको गुरु का शरीर को सुखी रखना चाहिए, उसको कोई इतना तकलीफ ना हो। फिर जो शिष्य लोग प्रभुपाद जी को सेवा करते थे, अभिराम प्रभु करके लास्ट डेज में प्रभुपाद जी का सेवा करते थे, फिर उनका शौच भी साफ करते थे और उनका कपड़ा बदलते थे। फिर प्रभुपाद जी एक बार अभिराम प्रभु से पूछे थे, डोंट यू हेट, आपको गिन नहीं आता है कि मेरा शौच साफ करना, मेरा टॉयलेट साफ करना, मुझे टॉयलेट लेके जाना है, कपड़े साफ करना है, ये सब है ना, आपको
प्रभुपाद नारद मुनि भी बोलते हैं, प्रभुपाद जी भी बोलते हैं कि गुरु को सेवा करने से एक्चुअली गुरु का एक्चुअली वैष्णव गुरु जो होता है वो यूजुअली मिरेकल्स चमत्कार नहीं दिखाते, क्योंकि एक वैष्णव गुरु के पास जाके श्रवण करके ज्ञान प्राप्त करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि चमत्कार देख के मिरेकल्स देख के हाँ ये भगवान है, ऐसा सोचना नहीं चाहिए। वैसा ही ये जो गुरु का शरीर है वो बीमार नहीं होता है, लेकिन हमको सेवा में नियुक्त करने के लिए, हमको सेवा करने का मौका देने के लिए, उनका सेवा करने के लिए मौका देने के लिए, चांस देने के लिए वो बीमार होते हैं। लेकिन उसका दिव्य शरीर है, उनका शरीर दिव्य होता है गुरु का शरीर। इसलिए हम ये नहीं सोचना चाहिए प्रभुपाद जी बीमार है ऐसा वैसा। वैसा ही ऐसा सिस्टम था, वैसा कृष्ण भगवान ये सब करते थे। गुरु का चरण सम्मान करना, उनके लिए पानी लाना, ये सब किए थे भगवान कृष्ण बलराम। आप लोग जानते ही एक बार गए थे कुछ लकड़ी इकट्ठा करने के लिए, फिर तूफान आ गया था, पूरा रात वो उधर ही थे। फिर बाद में गुरुजी आए थे, फिर उनको रेस्क्यू किए थे। ये सब सामान्य मनुष्य जैसा सेवा करते थे। फिर 64 दिन में 64 कलाएं सीख लिया था। कृष्ण बुक आप लोग पढ़ सकते हैं। फिर बाद में विद्या समाप्त होने के बाद गुरु दक्षिणा देना चाहते थे। फिर जब ये बात गुरु दक्षिणा देना चाहते थे, फिर संदीप मुनि देखा कि ये तो सामान्य बालक नहीं है, ये तो भगवान जैसे दिख रहे हैं, इसलिए उनके लायक एक वर मांगना चाहिए करके उन्होंने उनका एक पुत्र प्रभास क्षेत्र में, महाशिव क्षेत्र है प्रभास क्षेत्र, मथुरा द्वारका के पास है, उधर जब नहाने के लिए गया था समुद्र में, वो उधर डूब के मर गया था वो। इसलिए वापस हमारा मरा हुआ बच्चा को, हमारे पुत्र को वापस लेके आइए। फिर कृष्ण बलराम बोला तदास्तु, सो बीट। फिर तुरंत उनके पास रथ आया, फिर रथ में बैठ के प्रभात क्षेत्र के पास गए थे, समुद्र के तट पर। फिर आप ये देखना, भगवान रामचंद्र जब पुकारे थे, समुद्र नहीं आया 3 दिन 3 रात, तो फिर रामचंद्र को क्रोध दिखाना पड़ा। लेकिन भगवान कृष्ण भगवान का वही स्पेशलिटी है, क्योंकि भगवान रामचंद्र एक साधारण मनुष्य जैसा बिहेव कर रहे थे, तो लोग पहचान नहीं पाए। लेकिन हमेशा जन्म से ही कृष्ण भगवान अपने भगवतता दिखाए थे भगवान। फिर भगवान जाते ही उसको आज्ञा दिया था, हे समुद्र तुरंत आओ। फिर समुद्र प्रकट हो गए कृष्ण भगवान के सामने, सरकार क्या आज्ञा है, क्या आज्ञा है? मेरा गुरुजी का पुत्र आपने खा लिया, डुबा दिया, फिर तुरंत वापस करो। फिर उन्होंने बोला मैंने नहीं किया, ये पांचजन्य करके एक राक्षस था, उन्होंने वध किया था, क्योंकि पांचजन्य मेरे से बलवान था, इसलिए मैं उसको कुछ नहीं कर सका। इसलिए फिर भगवान कृष्ण भगवान बलराम जी को तट पे खड़ा करके स्वयं गए थे समुद्र के अंदर और पांचजन्य राक्षस को ढूंढे थे, फिर उनको वध किया था। विश्वनाथ चक्रचार्य लिखते हैं कि स्कंद पुराण कोट करते हुए कि जैसा जय विजय का श्राप हुआ था, वैसा ही पांचजन्य का भी श्राप हुआ था, इसलिए उसको वापस रिकवर करने के लिए ये लीला किए थे। क्योंकि कृष्ण भगवान जानते थे कि उनके गुरुपुत्र किधर है, किधर गए हैं, फिर भी ये लीला उनको ये पांचजन्य को, अपना पांचजन्य शंख को उद्धार करने का था, फिर वापस अपने पास रखने का था। इसलिए समुद्र के भीतर गया, पांचजन्य राक्षस को मारा, फिर उनको पता चला कि उधर नहीं था गुरुपुत्र, फिर पांचजन्य लेके गए, फिर उनको संयमनी नगर यमलोक गए थे, यमलोक। ये बात आप भागवत में नहीं लिखा है, मैं स्कंद पुराण में लिखा है, विष्णु चक्रचार्य ने कोट किया था। बहुत ही सुंदर लीला मैं बताने वाला हूँ, श्रद्धा से सुनिए। जब कृष्ण भगवान गए थे और यमलोक के द्वार के पास खड़े होके अपने पांचजन्य शंखनाद किए थे, बहुत ही सुंदर। उस समय
बहुत सारे नरक है, आप लोग जानते हैं। असीपत्र नरक करके एक है, उधर है ना। असीपत्र नरक में ऐसा पत्ते होते हैं और उनके ऊपर कांटे होते हैं, फिर उनके ऊपर बिछाते हैं पापी लोगों को। बहुत ही दर्दनाक होता है, बहुत ही भयानक दर्द पीड़ा होती है पापियों को। और रौरवा करके नरक है, उधर है ना कोबरा से ज्यादा, नाग से ज्यादा, हजारों ज्यादा विषैली जहरीली सांप होते हैं, वो काटते हैं। और कुंभीपाका नरक में जलाते हैं बॉइल्ड ऑयल में जो ऐसा बहुत सारे नरक हैं जो मांस खाते हैं। कुंभीपाक हेल में, रौरवा हेल में रौरवा काटते हैं और माता पिता को टेक केयर नहीं करते हैं, उसको कुंभीपाका नरक में बॉईल करते हैं, फ्राई करते हैं, पकौड़ा बनाते हैं। ऐसा बहुत सारे नरक है। बहुत नरक में नरकवासी बहुत ही दुख भोग रहे थे, उसका बहुत पीड़ा हो रही थी, चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, मुझे रक्षा करो, बचाओ बचाओ बचाओ, ऐसा करके। जैसा ही कृष्ण भगवान शंख बजाए थे, तुरंत उनको ऐसा लगा कि सारे नरक में, कुंभीपाक नरक में सारे आग बुझ गया। और अशीपत्र नरक में जो जिस अशीपत्र पत्तों के ऊपर जो सुलाए थे, उनको ऐसा लगा कि डल्लप बेड में सोए हैं वो लोग। रौरवा हेल में भी उनका एकदम विष निकल गया। फिर ऐसा लगा कि उनको चंदन का लेप लगाया किसी ने उनके शरीर के ऊपर, ऐसा पूरा सफरिंग खत्म हो गया। और इसी बीच में भगवान कृष्ण का शंखनाद सुनते ही भगवान वैकुंठ से विमान आए थे और सबको, नरकवासियों को अपने विमान में बिठा के वैकुंठ लोग चला गया, पूरा नरक खाली हो गया। ऐसा कृष्ण भगवान का हमारा प्रभुपाद जी। इसलिए कृष्ण अवतार का मतलब सारे जीवों का उद्धार। जो कृष्ण को देखा है, जो विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर 10वें स्कंद 12वें अध्याय में लिखते हैं कि जब कृष्ण भगवान आए थे, एक कृपा के सागर को उन्होंने छोड़ दिया था। कोई भी व्यक्ति वो जो कृपा सागर के पानी से संपर्क में आए थे, वो भगवान के धाम में चले गए या मुक्ति मिल गया, ऐसा कुछ था। ऐसा ये इतना कृष्ण अवतार, राम अवतार और चैतन्य महाप्रभु का अवतार, ये तीनों अवतार सारे जीवों को, जैसे कि भगवान रामचंद्र पूरे अयोध्या वासियों को अपने साथ लेके चले गए, वैसे ही कोई भी कृष्ण को देखा था, कृष्ण के साथ संपर्क में आया था, वो वापस जन्म नहीं लिया। वो कृष्ण के स्पेशलिटी, कृष्ण के अवतार का, नॉट अवतार, कृष्णा से अपीयरेंस का स्पेशलिटी है। इसलिए फिर बाद में उन्होंने लेके आए पुत्र को। फिर कृष्ण यमराज को आज्ञा दिए थे कि मेरा बेटा गुरुपुत्र को वापस करो। फिर जैसा उनका शरीर था, पहला जो शरीर था, वही शरीर में उन्होंने लेके भगवान ने उनको प्रकट करवाया। फिर वही एज में, जितना जब तक कितने साल पहले उन्होंने शरीर त्याग कर दिया, फिर उतने साल के बाद कितना जैसा शरीर बनता है, वैसा शरीर उनको प्रदान करके अपने साथ लेके गए और गुरुजी को बोला गुरु दक्षिणा दे दिया। फिर उन्होंने बहुत प्रसन्न हो गया। फिर कृष्ण बलराम ने पूछा और कुछ चाहिए क्या? फिर अरे आपके साथ, आपके सेवा, आपको मैंने विद्या दिया, फिर अब उसके बाद आपके साथ मुलाकात के बाद और क्या आपको मांग चाहिए होता है, इसलिए आप, फिर उन्होंने वर दिया था, उन्होंने वर दिया था कि जो भी विद्या सीखा हो हमेशा जन्म जन्मांतर तक तुमको याद रहेगा, ऐसा करके उन्होंने वर दिया था। फिर बाद में कृष्ण बलराम वापस मथुरा आ गए। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है मेरी? या प्रभु जी बहुत सुंदर, बहुत नेक्टेरियन क्लास प्रभु जी। मतलब बहुत मधुर कथाएं आपने इस क्लास के बीच में सुनाई। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। हाँ जी प्रभु जी, आपने इतने सुंदर सुंदर पॉइंट्स प्रभु जी इसमें बताए कि प्रभुपाद के बारे में अपनी कथाएं सुनाई, अपनी कृष्ण के बारे में कथाएं सुनाई। जैसे कृष्ण भगवान को आपने हमें बताया कि हमेशा चंदन और तुलसी का अगर हम अर्पित करते हैं चरणों में तो कृष्ण हमेशा जरूर प्रसन्न होंगे। और आपने जो आपकी खुद का एक एक्सपीरियंस बताया हमें कि आपने कृष्ण भगवान का श्रृंगार के लिए थोड़े दिन के लिए ब्रेक लिया और तुरंत ही कृष्णा की मर्जी ऐसी फ्लो हुई कि कृष्णा चाहते थे कि आप ही उनका श्रृंगार करें, इसीलिए आपको ऐसे प्रभुपाद का कोट सुनाई दिया कि श्रृंगार करेंगे कभी ना कभी कृष्ण मुस्कुराएंगे। That is Krishna's wish and his mercy कि वो चाहते थे आप श्रृंगार करें प्रभु जी। और प्रभु जी आपने वो सुदामा की कथा भी बहुत अच्छे से सुनाई प्रभु जी, और उनके 3 जो वर मांगे बहुत मीनिंगफुल प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, उन्होंने पहला वर मांगा था कि भगवान आपके चरण कमल के प्रति निश्चल भक्ति देना, कभी वो भक्ति हिले नहीं ऐसी भक्ति देना, और आपके जो भक्त है उनके साथ मित्रता देना, और तीसरा था कि सब जीवों के प्रति अनुकंपा मतलब दया देना। प्रभु जी प्रीचिंग करना है, प्रीचिंग करना। हाँ यस प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास था। और आपने अभी एक भी बताया कि भगवान के सिर्फ शंकरनाथ सुनकर भी बहुत सारे जो नरक के वासी थे उनका भी उद्धार हो गया, मतलब उनकी पीड़ाएं खत्म हो गई, वापस वैष्णव मतलब धाम चले गए अपने। मैं जब लीला पढ़ा था, हाँ मैं जब लीला पढ़ा था मेरा शरीर पुलकित हो गया। कृष्ण से मर्सी, वो लोग कुछ नहीं किया लेकिन शंकरनाथ सुन के वो लोगों का उद्धार हो गया। दिस इज कॉजलेस मर्सी। जी प्रभु जी। और एक लीला हुआ था कि जब कृष्ण द्वारका से हस्तिनापुर जा रहे थे, पूरे जंगल में बहुत सारे लोग उनको देखे थे कृष्ण भगवान, फिर कृष्ण भगवान भी देखे थे उनके ऊपर। ऐसा दृष्टि प्रसार करने से उनका प्रभुपाद जी लिखते हैं भक्त रसायन सिंधु में कि वो सब भगवान के धाम में चले गए। जी प्रभु जी। और एक अच्छी बात आपने बहुत अच्छी सुनाई प्रभु जी इसमें कि वैष्णव गुरु जो होते हैं कोई मिरेकल्स नहीं दिखाते। हाँ। हमें क्या करना, उनके पास श्रवण करना है जाके और ज्ञान प्राप्त करना है। तो ये एक अच्छी बात आपने बताई प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक जिज्ञासा थी आपसे प्रभु जी कि आप भगवान की श्रृंगार करते राधा श्री राधा रास बिहारी के, और कभी हमें भी गार्लैंड सेवा मिल जाती है, कभी जैसे ड्रेस मेंटेनेंस की सेवा टेम्पल में मिल जाती है, तो प्रभु जी ये सेवा करते वक्त हमारा भाव कैसे होना चाहिए प्रभु जी? पहला हमको ये कंप्लेन नहीं होना चाहिए ये सेवा करना पड़ रहा है। फिर बहुत ही अपने आप को भाग्य समझना चाहिए। इतना भाग्य है, इतने सारे कोटि जीव है, हमको चांस मिला है। ऐसा करके बहुत ही नम्रता से, बहुत ही कृतज्ञता से सेवा करनी चाहिए, बहुत और प्रेम से सेवा करना चाहिए कि मुझे कृष्ण को तकलीफ नहीं होना चाहिए। ऐसा वो प्रेम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, थैंक यू। Any other? Somebody raise their hand. हरे कृष्णा। Yeah. हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। जी गुरुप्रिया माता जी, हरे कृष्णा। विश्व प्रभु जी भी है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल क्लास। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे हम चंदन ऑफर करें तुलसी लगा के, तो ठंडी में अगर फिर ऐसे लगता है कि ठंड है तो चंदन भी ठंडा है, तो नहीं, थोड़ा ठंडी चलता, थोड़ा सा कर सकते हैं। या हमें चंदन का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेवा है। चंदन बहुत ही, जैसे कि सालिग्राम में अभी भी चंदन लगाते हैं। चंदन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेवा है। चंदन फिर हर सीजन में थोड़ा सा चंदन कितना लगता है? थोड़ा सा। ओके जी प्रभु जी, करती थी प्रभु जी मैं, लेकिन फिर मुझे लगा अब ठंडी बहुत है तो आई स्टॉप डूइंग, तो मुझे लगा एक बार मैं आपसे पूछ के क्लियर कर।
हम थैंक यू सो ऑफर करते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। Yeah. हरे कृष्ण। या गोपी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो प्रभु जी, इतना सुंदर आज का जो क्लास था, इट वाज रियली सो नेक्टेरियन, मतलब बोल नहीं सकते शब्दों में, इट वाज सो, और इतना अच्छा आपने लीलाओं का वर्णन किया। नॉट ओनली दैट, उसमें इतने सारे, जैसे जो कुब्जा का जो वर्णन किया, वो भी शी वाज आल्सो भूदेवी, ये फैक्ट पता नहीं था। दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। और फिर दूसरा आपने जो बताया कि भगवान कृष्ण एक शैवाइट गुरु के पास क्यों गए, तो बहुत लोगों को ऐसा हो सकता है, देखो। सो दैट वाज आल्सो एन अल्टीमेट थिंग प्रभु जी, की कैसे मतलब वैष्णव जो है वो हमेशा वो भगवान को पहचानने और वो उनको ऐसा ट्रीट नहीं करेंगे गुरु की तरह। So that was one wonderful thing प्रभु, and there were many nice points प्रभु जी। जैसे आपने जो बोला कि जैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं कि गुरु का वाणी सेवा करना चाहिए, लेकिन आपने बताया कि गुरु का वपु सेवा इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत भाग्यशाली लोगों को ये मिलता है कि गुरु का जो सेवा है। एंड जैसे आपने बताया कि प्रभुपाद जी का जो अभिराम प्रभु सेवा कर रहे थे, दैट वाज रियली कमेंडेबल। So there were lot of things प्रभु जी, ऐसा लगता है आज आपको सुनते रहे। That was very nice, but आपको भी सेवा है, आपको जाना होगा। So thank you जाना है। thank you प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी विश्वम्बर प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रभु जी, काफी अच्छा आपका क्लास था, और आपने बताया कि जैसे आपने राधा गोविंद महाराज का सुना था और उसमें से आपने बताया, तो ऐसे हमको भी ऐसे लग रहा था कि साक्षात आप जो लीला बता रहे हैं तो हम उसको देख पा रहे हैं। और प्रभु जी आपने वो बिल्कुल अच्छा, और प्रभु जी आपने बताया कि उनको कंस को सारूप्य मुक्ति मिली थी, क्योंकि कृष्ण का हमेशा याद कर रहा था। तो उनको सारूप्य मुक्ति मिली, तो उनको मतलब वैकुंठ में कौन से लोक में उनको जाकर के निवास में, सारूप्य में तो ऐसा होता है ना प्रभु जी कि भगवान के जैसा ही हमें रूप मिलता है। तो ये जो लोग जो कौस्तुभमणि और श्रीवत्सा नहीं मिलते हैं उनको, लेकिन वैसे ही कृष्ण या विष्णु जैसे दिखते हैं। तो प्रभु जी वो तो भगवान के जो द्वारपाल थे, जय और विजय, और उनकी वहां पर इटर्नल सेवा थी, फिर वो वहां से यहाँ गिरे थे, फिर उनको सारूप्य मुक्ति मिली, यानी कि वो भगवान के जैसे रूप उनको मिल गया, तो वो वापस नीचे आएंगे क्या अगले के लिए? मैंने सुना वो जब कृष्ण भगवान शिशुपाल और दंतवक्र को मारे थे, वो वैकुंठ गए थे वापस, फिर वो लोग खुश नहीं थे, फिर वापस जगाए और मदय बन के आए थे, फिर अभी भगवान महाप्रभु नवद्वीप में चला गया। अभी जय विजय वैकुंठ में नहीं है। तो जय विजय का जो उनकी सेवा का जो भाव था वही चेंज हो गया सर प्रभु जी, तो पहले का जो सेवा का भाव था उसके बाद जगह मदय बन गया और कृष्ण प्रेम मिल गया उसको। तो कृष्ण प्रेम मतलब जो पहले जो द्वारपाल थे उसके उस वक्त भी उनके पास कृष्ण प्रेम नहीं था, फिर वो जब नीचे गिरे, फिर वो जब चैतन्य महाप्रभु की लीला में आए तो उनको कृष्ण प्रेम मिला। कृष्ण प्रेम सबको नहीं मिलता है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू ना। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर हो गया। हरे कृष्णा। थैंक यू गणेश प्रभु जी। आपसे ऐसे रिक्वेस्ट है, प्लीज प्रभु जी आप ऐसे आते रहिए और ऐसे ही इतना जो मधुर कथा सुनाते रहिए, तो आपका संग देते रहिए। हरे कृष्णा। नमस्कार प्रभु। नमो नमः। हरे कृष्ण। राम रूप प्रभु जी की जय। हरे कृष्णा। नमस्कार। हरे कृष्ण।